Assalamu alaikum everyone and welcome to today's session of computer programming in C language. So far we have discussed three chapters till now, and today we will be discussing chapter number 4 of the book that we are following is Turbo C++ by Robert LaForge. And chapter number 4 that is our today's topic is decisions from the same book. So decision is basically, I must say, very important and testing chapter of this basically C. So let us see what actually it is, what actually decisions are. We will be discussing a little bit theory. Okay, so if statement in C में if statement क्या होती है या C में if statement क्या होती है? So basically if we say if statement, the if जो basically if का जो sign tag होता है या if expression कैसे लिखते हैं, say suppose if, then we have some sort of condition, like if, then we have test expression. You know very well, we have discussed loop throughoutly. I think more than a week we discussed three types of loops. So the test expression, concept of test expression should be very clear to you all. The test expression basically क्या होती है, ठीक है? If is the keyword, like for was the keyword, while was the keyword, and do while was the keyword. So like that, if is the keyword over here, and then we have test expression. We have some sort of expression like if something happens, like if a is greater than 0, a is lesser or equal to 0, like same concept जो ऐसा टेस्ट एक्सप्रेशन में लूप में जो हम टेस्ट एक्सप्रेशन में जो चीज यूज करते थे, वही उसी टाइप की जो हम कंडीशन लिखते हैं, जहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इफ के में जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर जो टेस्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें वही कंडीशन उसी टाइप की हम यूज करते हैं. देन वी हैव बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट, जिसमें हम कोड लिखते हैं जिसपे हमें वो पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट रन करानी है. So at that point, maybe it is a bit like mystery for you all that what actually it is. When we will be discussing it in a brief manner, like we will be coding, so that will be quite interesting for you all, and you will be knowing it better and better way. So how if statement works? If statement work कैसे करती है? The if statement evaluates that the test expression inside the parenthesis. ठीक है? If statement क्या करती है? Evaluate करती है जो test expression parenthesis, like ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन है ना पैरेंथेसिस की, उसको एवेल्यूट करती है. इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज एवेल्यूटेड टू ट्रू, अगर ये एक्सप्रेशन टेस्ट मतलब कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इफ की बॉडी में जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन होता है. अगर टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है, मतलब इफ की जो टेस्ट एक्सप्रेशन है अगर वो फॉल्स है, देन बॉडी ऑफ जो इफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी. सेम वही कॉन्सेप्ट जो लूप में होता था, अगर कंडीशन फॉल्स है सो वी आर आउट फ्रॉम द लूप. ठीक है, हम लूप से आउट हो जाते थे. वी कम आउट ऑफ द लूप और वी कम ब्रेक फ्रॉम द लूप. ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं लूप से. तो लाइक यहाँ पे भी सेम चीज है. अगर जो है हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ स्टेटमेंट की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी. एंड इफ द कंडीशन एवल्यूटेड टू बी फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट इनसाइड द इफ आर नॉट एग्जीक्यूटेड, तो उसकी जो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो एवल्यूट नहीं होंगी. लाइक वी हैव फ्लो चार्ट ओवर हियर. ठीक है, वर्किंग है ऑफ इफ स्टेटमेंट. सपोज इंटीजर है एक जिसका नाम है टेस्ट, दैट इज इक्वल टू टेस्ट एक्सप्रेशन, एंड टाइप ऑफ वेरिएबल इज int. So int variable है हमारे पास, and name of that particular variable is test, and that is equal to 5. We have assigned a value 5 to variable test. Now condition is there, if test is less than 10. अगर test जो है less than 10 है, suppose test variable की value less than 10 है, so blah blah whatsoever code is there, अगर ये condition true होती है तो ये code work करे. And अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो दैट कोड विल नॉट वर्क. अब यहाँ पे बात ये है, यहाँ पे सिर्फ इफ की बात है. इफ के अलावा एल्स इफ भी होता है एंड एल्स भी होता है. ये भी चीजें अगर हम फर्दर देखेंगे. नाउ अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है, इफ टेस्ट इज ग्रेटर देन 10, यहाँ पे देखें अगर इंटीजर क्या था, टेस्ट इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि क्या कंडीशन है, टेस्ट इफ टेस्ट इज लेस देन 10 तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो. तो डेफिनेटली इट विल एग्जीक्यूट, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू 5 है और कंडीशन ये है कि अगर लेस देन 10 हो तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो. तो यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू होनी है. अब यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन फॉल्स. कैसे? क्योंकि टेस्ट इक्वल टू 5 और कंडीशन क्या है,
if test is greater than 10, अगर test की value greater than 10 है, लेकिन we know very well the value that is assigned over here is 5, तो assigned की हुई value अगर 5 है और जो है कंडीशन ये है कि greater than 10 value हो, so definitely that is wrong expression over here, तो यहाँ पे condition false हो जाएगी. तो this is basically the concept of if statement. यहाँ पे हम कुछ और ऑपरेटर्स यूज करते हैं, लाइक लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स. So we will also be discussing that. Like we have code over here, block of code. Code है basically that there's an integer that is number, ठीक है. Suppose there's a message for user, enter an integer. Now scanf, we are taking the input from user in that particular number variable. So now checking the condition, if statement ऐसे use होती है, if number is less than 0, अब user ने जो हमें value दी है, हम check कर रहे हैं अगर ये less than 0 है, you entered %d number, हम उसे ये %d जो है कोई मैसेज देंगे कि तुमने ये, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर सपोज लेस देन 0 है तो हम उसको ये मैसेज देंगे. अदरवाइज द इफ स्टेटमेंट इज इजी, ठीक है. अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है या कुछ, उसके बाद जो है ये मैसेज प्रिंट होगा. सो आउटपुट नंबर 1, अगर हमने -2 प्रिंट किया क्योंकि लेस देन 0 मींस नंबर इज इन नेगेटिव, ठीक है, तो -2 प्रिंट किया, यू एंटर्ड -2 एंड द इफ स्टेटमेंट इज इजी. और अगर हमने 5 प्रिंट किया, ठीक है, यूजर ने 5 जो वैल्यू दी, सो वी नो वेरी वेल 5 इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि कंडीशन क्या है, नंबर इज लेस देन 0. अगर यूजर ने ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे दी, सो डेफिनेटली इफ की जो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी. वही बात है कि अगर कंडीशन लूप की वैल्यू जो है, लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप से आउटसाइड आ जाएंगे, लूप से ब्रेक हो जाएंगे और लास्ट में अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो प्रिंट होगी. यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही थी, इसलिए जो है उसके बाद वाली भी स्टेटमेंट प्रिंट हुई और कंडीशन वाली भी वैल्यू जो कंडीशन में वैल्यू लिखी थी वो प्रिंट हुई. लेकिन यहाँ पे जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्ट जो है हमने यूजर से वैल्यू ली, उसने 5 जो है इंटर किया वर्ड कीवर्ड, ठीक है, 5 जो प्रेस किया, तो we came outside from the body of if statement, और क्या प्रिंट हुआ, the if statement is easy but this condition didn't work, ठीक है. ये कंडीशन प्रूव ही नहीं हुई एक चीज, तो ये चीज एग्जीक्यूट नहीं हुई. दिस इज यहाँ पे if then else if का भी कॉन्सेप्ट है. I think firstly we should discuss about if statement, then we will move towards else. Now let us move towards okay, just confirm, just let me know, is the screen visible to all? Is the IDE of Turbo C visible to all or not? Just let me know this. Okay. Okay, let us start very first program. And during the programming, if anyone has any sort of question, they can ask. There's no any restriction. But let me finish the program first. So I'm following the program of the book, the very first program. Okay, first of all, हम क्या लिखते हैं? What we write? अगर मुझे कोई प्रोग्राम लिखना है, सपोज क्या लिखेंगे सबसे पहले? हेलो घर में लोग सर हम जो है वो लाइब्रेरी फाइल्स लिखेंगे. Okay, library files. Like we have library files include stdio.h, and then we have include, and if I make any kind of mistake, just let me know.
conio.h. So these are the basic library files that we use in our programs. Now, whatever we write in that particular main function. Now, after that, we know very well we write clear screen. So, why Narinder is the if Narinder is there, why we write clear screen? हम clear screen क्यों लिखते हैं? What is the use of clear screen function? I guess Narinder is not there. If anyone can answer, why we use clear screen function? सर जो है हमें स्क्रीन जो है वो क्लियर नजर आनी चाहिए हमें What do you mean ऐसे by? होता है कि आउटपुट में सर आउटपुट अगर हमें चाहिए क्लियर स्क्रीन में यानी कि हम जो है वो क्लियर स्क्रीन नहीं लिखेंगे तो आउटपुट हमें जो है वो शो ज़्यादातर नहीं होगा बस कुछ No, that सेकंड is के लिए आएगा okay. Wait. That is not the concept. Please unmute your mic for a while. Okay. Any other one who knows the concept of clear screen? Clear screen. What is the concept of using clear screen? क्यों use करते हैं clear screen? ये तो concept नहीं है. सर मुझे याद आ गया सर याद आ गया सर याद आ गया Wait. Who's the second one student? Yes. Why we use clear screen? सर हमें जो प्रीवियस आउटपुट है वो नहीं चाहिए इसलिए हम लोग क्लियर स्क्रीन यूज करते हैं हमें output नहीं चाहिए, so we are using clear screen. Are you guys in the sense? सर प्रीवियस Okay, previous output. Yes, previous output. If we want to clear the previous output, we want to clear the screen. That is why we use. हमें अगर previous output repeatedly नहीं चाहिए तो हम इसलिए clear screen use करते हैं. Okay. Now we have suppose a variable of type character, and the name of the variable is ch. Now ch is assigned a task. Ch is assigned get che. That should be familiar to you all. Now condition is if ch equals to y. अगर ch जो है वो equals to y है, printf, the message should be printf \n is there, you typed y. So this is very first and अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि सबसे पहले तो हमने हेडर फाइल और लाइब्रेरी फाइल्स यूज की कौन सी थी stdio.h and conio.h. Then we have void main void so whatsoever we write and clear screen to clear the previous output, and then we have for very first variable that is character type variable and whose name is ch. Now we are assigning get ch function to ch. We know very well कि हम get ch सिर्फ जरूरी नहीं है हम जो है scanf के थ्रू वैल्यू लें, हम get ch के थ्रू भी वैल्यू ले सकते हैं. बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि get ch के थ्रू हम कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, किस टाइप की वैल्यू ले सकते हैं हम. Can we take the integer and float value from through get ch? क्या हम get ch के थ्रू ऐसे इनपुट ले सकते हैं फ्लोट और इंटीजर टाइप? नो सर ओके, सपोज हमने कोशिश की कि हम जो है उस टाइप का इनपुट लें लाइक गेट ch के थ्रू हम जो है इंटीजर वैल्यू लें, तो व्हाट हैपन, क्या होगा, इनपुट लेगा हमसे या नहीं लेगा, व्हाट शुड बी आउटपुट, आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल द सिनेरियो ओवर देयर, क्या सिचुएशन क्रिएट होगी? एनीवन कैन आंसर? अगर हमने गेट ch फंक्शन के थ्रू इंटीजर एंड फ्लोटिंग जो टाइप जो है वैल्यू यूजर से ली, सो व्हाट शुड बी आवर आंसर, क्या वो वैल्यू लेगा हमसे या नहीं लेगा, और अगर लेगा तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? सो जस्ट लेट मी नो दिस, आई हैव डिस्कस दिस इन क्लास. सर आंसर तो निकली नो पर आंसर इंदोला अच्छा यू खबर ना है. ओके, आंसर निकली दो बट आंसर चाहिए दो, यू नो डोंट नो, ठीक अच्छा आंसर दो. एनी अदर वन?
Don't be like this. Okay, I think I have to answer by myself. The जॾहिं बि अठां get ch win ॾिसो get ch is the full form of get ch means get character. ठीक है, get character basically जेको आहे character type variable ते कम कंदो. It works on only on character type variable. If we try to take the input as integer and float, वो हमसे input लेगा. ऐसी बात नहीं है कि input नहीं लेगा, input लेगा, लेकिन हमें जब हम उसको print कराने की कोशिश करेंगे, when we try to print that value, हम उस वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे इनपुट को, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी अ गार्बेज वैल्यू. हमें गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी. दैट विल बी नॉट, क्योंकि जो है गेट ch वेरिएबल जो गेट ch फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर टाइप जो वैल्यू को रिकॉग्नाइज करता है. तो उसमें अगर हम इंटीजर और फ्लोट वैल्यू जो है लेंगे तो जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं होगी. सो दैट इज द बेसिकली फैक्टर ओवर देयर. सो लेट अस कंपाइल दिस प्रोग्राम. देयर इज वन एरर. व्हाट इज एरर? अनडिफाइंड सिंबल y. Can anyone recognize what is the error over here? Why I'm feeling that I'm not conducting the class of computer science 21 batch? It looks like I'm conducting the class of any other one batch. Was not answering me. यहाँ पे क्या mistake है? Why is he giving me undefined symbol y? ch is assigned at value that is never used. क्या mistake है यहाँ पे? If you recall the concept, अगर हम कैरेक्टर टाइप वैल्यू लेते हैं यूजर से या कैरेक्टर वेरिएबल यूज करते हैं, उसमें जो भी हम वैल्यू लेंगे वो सिंगल कोटेशन में होगी. यहाँ पे हमने जो कैरेक्टर की वैल्यू जो असाइन की थी कैरेक्टर को, उसको हमने सिंगल कोटेशन में बंद नहीं किया था. सो दैट इज व्हाई इट गेव अस अ एरर. नाउ सी द आउटपुट स्क्रीन. अब क्या था, हमने मैसेज क्या यूजर को क्या दिया था कि प्लीज टाइप एनी वैल्यू, या हमने कोई भी इससे सपोज प्रिंटफ में कोई नहीं दिया था. अब हम सपोज H प्रेस करते हैं, एंटर, वी आर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ आउटपुट. हमने H टाइप किया था. ठीक है, नाउ अगेन Y, यू टाइप Y. हमने जब Y टाइप किया तो हमें मैसेज आया यू टाइप Y. अब देखिए कंडीशन क्या थी, हमने जो है कंडीशन ये रखी थी इफ ch इज इक्वल टू y, मतलब अगर यूजर y प्रेस करे तो उसे मैसेज आए यू टाइप्ड y. अगर उसके अलावा कुछ और प्रिंट करे सो नो मैसेज शुड बी देयर. मतलब कंडीशन क्या थी, अगर y प्रिंट यूजर टाइप करे y की जो है कीबोर्ड से जो y पर्टिकुलर जो सिंबल है उसको प्रेस करे तो जो है उसको मैसेज आए यू टाइप्ड y. अगर उसके अलावा कोई भी की प्रेस करेगा, अगर ये कंडीशन जो मतलब ट्रू तभी होगी अगर y प्रेस होगा. अगर y के अलावा कोई भी वैल्यू जो है यूजर की स्ट्राइक करेगा तो कोई भी उसको आउटपुट नहीं देगा. सो दैट वाज अबाउट, हमने जो है जब लाइक f प्रिंट किया एंड एंटर, वी डिडंट गेट एनी सॉर्ट ऑफ वैल्यू. जब हमने y प्रेस किया, सॉरी y, यू टाइप y, अगर y की जगह मैं यहाँ पे h लिख देखता हूँ सपोज. नाउ अब मैंने y टाइप किया, नो मैसेज इज देयर, क्योंकि यहाँ पे मैंने h दिया हुआ है. नाउ h, यू टाइप्ड h. सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग इफ. ठीक है, इफ का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम इफ कैसे यूज करते हैं, इफ कैसे एवल्यूट होती है, इफ कंडीशन क्या है बेसिकली. नाउ जस्ट लेट मी नो, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कंडीशन क्या होती है, इफ कंडीशन कैसे वर्क होती है. सर जैसे यहाँ पे आपने y दिया हुआ है, टाइप y, यहाँ पे अगर हम नंबरिंग में दे दें तो नंबरिंग को भी बता सकते हैं. यस वी कैन आल्सो. आप ये कह रहे हैं ना जहाँ पे ये y दिया हुआ है हम यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, लेकिन बात ये थी कि हमने गेट ch लिखा हुआ था और कैरेक्टर टाइप वेरिएबल दे रहे थे. ठीक है, तो वहाँ पे हम स्कैनफ फंक्शन यूज करके हम कोई भी एंड वी विल मॉडिफाई. ठीक है, फिलहाल जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इफ स्टेटमेंट में आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन जस्ट फॉर योर लिटिल बिट इंट्रोडक्शन मैंने जो है सिंपल टाइप का प्रोग्राम उठाया था. अगर हम वैसे जैसे आप बोल रहे हैं ना वैसे भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली h होगा नॉट y. सो लेट मी कंपाइल अगेन, इधर कैपिटल H और स्मॉल h. ठीक है, यहाँ पे हमें जो है आंसर दे रहा है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड प्रोग्राम. हम सेकंड प्रोग्राम लिखते हैं. Maybe it will clear your concept
a little bit more. And please, if anyone has any kind of question, try to ask, because in physical classes maybe I will not be discussing this again and again. जैसे मैंने रिपीटेशन प्रीवियसली की थी, मैंने अगेन एंड अगेन चैप्टर 1 से रिकॉल कराया था, तो मैं हर बार तो ये चीज नहीं कर सकता कि मैं अगेन एंड अगेन उसी चीज को रिपीट करता रहूं. अब सेकंड प्रोग्राम बेसिकली that is from book also. We have variable of type integer. Suppose integer char count integer, ठीक है. आपको इंटीजर है, एक इंटीजर है जिसका नाम है, या द नेम ऑफ दैट इंटीजर इज कैरेक्टर काउंट, और char काउंट दैट इज इनिशियलाइज्ड बाय 0. उसको इनिशियलाइज किया गया है 0 से. देन वी हैव another int that is word count, word word count that is initialized by 0. उसको भी हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से. then we have char, ठीक है. character type variable, name of that variable is ch. now message for user through printf using printf function. so printf function क्या है? बेसिकली इनपुट फंक्शन है या आउटपुट फंक्शन है? सर आउटपुट फंक्शन. सॉरी, सर आउटपुट फंक्शन है. ओके ये मैं आउटपुट दे रहा ना, जो भी हम इसमें लिखेंगे वो आउटपुट बताएगा. ओके ओके. Okay, user message for user. Please type in a phrase. Okay, the word phrase should be very familiar to you all, because one of our student asked why we use phrase word. What is the, and we discussed word phrase very well. Okay, we moved towards English class in that particular when we were discussing that word. Okay, now we have while keyword. Sorry, while loop is there. While ch is equal to get che is not equal to okay, sorry for this, actually we are running out of time, so I got a message. So 10 minutes to complete this session, but 10 minutes are enough to run this program and try to make you all understand. So don't get confused about this. While loop है, while loop में एक expression है, ठीक है. ये ब्रैकेट्स इतने सारे इसलिए क्योंकि एक ब्रैकेट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ch is equal to get ch, ठीक है. और उसके गेट ch फंक्शन वी नो वेरी वेल. अगर हम गेट ch जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना गेट ch, तो उसके आगे तो पैरेंथेसिस वी नो वेरी वेल. द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज दैट कि उसके आगे पैरेंथेसिस होंगी. तो ये दो पैरेंथेसिस तो उसके हैं, ठीक है. और यहाँ से एक एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस हमने यूज किया था, तो वो यहाँ पे आके खत्म हो रहा है. नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड इक्वल्स टू है, इसका क्या मतलब है? वी डिस्कस इट इन द क्लास. मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन और इक्वल्स टू अगर लिखा हुआ है तो ये कौन सा ऑपरेटर बन जाता है? लाइक जैसे हमारे पास होता था ना, एक ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, ठीक है. उसी तरह ये ऑपरेटर भी है. तो क्या मकसद है इन ऑपरेटर्स का? क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ दीज ऑपरेटर? फर्स्ट, इस ऑपरेटर का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑपरेटर? सर मेरे ख्याल से ये जो है वो नॉट इक्वल टू. Which one? You are talking about this one? Yes. What about other students? Why they are on mute position? Are they not present in the class? This is basically equals to operator, less than, greater than, not equal to operator. And if I ask the question, ये
बैकस्लैश आर या कैरेज रिटर्न आर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग दिस? कैरेज रिटर्न आर का क्या मकसद है यूज करना यहाँ पे? इस पूरी स्टेटमेंट का क्या मकसद होगा? ch is equal to get ch is not equal to carriage return r, इसका क्या फंक्शन होगा? डू यू ऑल नो एनीथिंग अबाउट दिस? हमने इस पे एक नहीं मोर देन 3 और 4 प्रोग्राम्स किए थे. वी डिस्कस्ड इट मोर देन आई थिंक 1 आवर हमने इसको डिस्कस किया था क्लास में. इफ यू रिकॉल योर प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट online class, I'm talking about physical classes that we have discussed. बाई कैरेज रिटर्न आर का मकसद ये होता है जब तक यूजर जो है एंटर की प्रेस ना करे तब तक इससे इनपुट लेते रहो. इफ यू रिकॉल दैट वन प्रोग्राम, जिसमें एक प्रोग्राम था कि हम यूजर से तब तक इनपुट लेते रहें जब तक वो एंटर की प्रेस ना करे. ये भी वही कॉन्सेप्ट है. यूजर से तब तक आप इनपुट लेते रहो जब तक वो एंटर की प्रेस ना करे. जब एंटर की प्रेस करेगा तो इस लूप से हम आउटसाइड आ जाएंगे. नाउ CHAR COUNT character count plus plus. Now the condition is there, if ch equals to वर्ड काउंट. अगर ch में कोई इंक्रीमेंट होती है तो वर्ड काउंट में प्लस प्लस हो. ठीक है, वर्ड काउंट में इंक्रीमेंट हो जाए ऑटोमेटिकली. उसके बाद printf में यूजर के लिए मैसेज हो, printf \n CHARACTER character count is %d. ठीक है, %d की वैल्यू जो है कहां से रीड करे? दैट फ्रॉम CHAR कैरेक्टर काउंट से रीड करे. एंड उसके अलावा दूसरा मैसेज का हो printf में \n word count is %d. नाउ वर्ड COUNT वर्ड काउंट से ये जो है वैल्यू रीड करे. Now first of all, let us compile this program and run this program. Let's see what it does. I think I have made some sort of mistake. Why it is giving me that particular? Cannot convert character to CHAR. सर ते तो डबल कोड ने ते बागे सिंगल कोड गेन दिया. Where? सर सिंगल कोटेशन लगनी आई थिंक. सर इस कंडीशन में Yes. Sorry. Thank you very much. Okay, Alter F9, Control F9. Now type in a phrase. It is saying me to type anything like suppose HELLO hello EVERY everyone. अब वो मुझसे इनपुट लेता रहा है, मैं लेता जा रहा है, मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ. ठीक है, वो मुझसे तब तक, अब मैं इंटर जैसे प्रेस कर रहा हूँ ना,
कैरेक्टर काउंट इज 14 एंड वर्ड काउंट इज 1। वो बोल रहा है कि जो है कैरेक्टर काउंट कितने कैरेक्टर्स हैं टोटल 14 है, लेकिन वर्ड काउंट में वो बोल रहा है कि यू हैव टाइप्ड जो है 1, जबकि हमने 2 वर्ड्स टाइप किए हैं। सो इट इज गिविंग मी सम सॉर्ट ऑफ रॉन्ग आउटपुट कि हमने जो है वर्ड जो लिखे हैं वो एक लिखा है, लेकिन कैरेक्टर काउंट में हमें, अब जैसे सपोज लेट अस काउंट द कैरेक्टर H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यस 14। सो 14 कैरेक्टर्स तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो फर्स्ट जो दे रहा है कैरेक्टर काउंट इज 14, ओके। नाउ सेकंड वन इज वर्ड काउंट इज 1, ओके। The thing is this that first session is about to end in just 2 minutes. जो remaining जो है हम just after just after 2 minutes, after 2 minutes जो है second session अब start करते हैं। उसमें जो है remaining जो भी है उसको discuss करते हैं और इस error को rectify कर देते हैं, no issues there, ठीक है, कि क्यों error दे रहा है या कुछ भी। So just after 2 minutes again join the class और इस प्रोग्राम को briefly discuss करेंगे, and this is very important topic, so don't try to escape. If anyone want to escape, then that is your own choice. So I suggest you all just write back after 2 minutes.